they've properly given this notification on 1st April itself. This notification is brought in 6 changes in tax audit report, which is applicable from assessment year 21-22. That means this assessment year, which we are filing 21-22, these amendments are applicable for the assessment year 21-22. I request everyone to please put their mic on mute. Sanjit, you can mute everybody. I request everyone to please. Yes, sir. I'm everyone. Then you should only unmute. You mute everybody. I will unmute myself. Yeah. Just I will not giving option to everyone to for unmute option. Now you can unmute only. Now you can. Okay, I have unmuted myself. Yes, that's over. Nobody now can. Unmute. Sorry. Sure. Yes, please start, sir. Okay. So first time the 3CD has given you an option to revise. Sometimes we have revised our 3CD, but there was no specific option to revise. What happened if any mistake has been committed by a chartered accountant? We used to revise that form, and basically we write that this mistake was there and hence we are revising it. This time government has officially given an option to revise the form 3CD. But what limited purpose? What is it? For recalculation of disallowance under section 40 or section 43B. Just for these two situations only, you can revise your form 3CD. But first of all, why this option was required? This option is required because the filing date for tax audit is 1 month prior to filing of income tax return. If I have made a provision for, say, statutory liabilities, not paid till the date of audit, but I have discharged that before filing of my return. I have 1 month time to file my return. I have discharged my liability before filing of return. If I have not deducted any TDS, auditor has reported that this expenditure should be disallowed. But I have deducted TDS and deposited it before filing of return under section 139(1). Then I am eligible for that. I am claiming that deduction in my return, and CPC is disallowing that deduction. Why? Because that disallowance is being taken up from the tax audit report. So now they have given an option to the auditor to revise it. So again, we will have to do some additional work in such cases, because the moment there's a disallowance or the moment anybody has paid discharges liability under section 43B or TDS has been paid, our client will come up and say, sir, you revise your 3CD report. And then we can revise our 3CD report according to the change in situation. And after that, the processing of CPC will be done on the basis of revised tax audit report. And then there would be no disallowance for non-deduction of TDS or for discharging of statutory liability under section 43B. So this was the first change and a welcome change in form 3CD. But being an auditor, it would be a liability for us. We have to do this here, file the 3CD twice, maybe the situation. Now, till when we can revise it? What is the time limit to revise the tax audit report? A tax audit report is allowed to be revised for a limited purpose only. A tax audit report is allowed to revise before the end of the relevant assessment. So assessment year is 21-22. So we can revise the tax audit report till 31st March 22. This is the time limit till which we can revise. However, the time limit for filing of belated return is restricted to 31st of December. But the time limit to revise tax audit report is still available up to 31st of March. Next change is there in clause 8A. To report the exercise of option under section 115 BAC and 115 BAD. I feel all the members are very much familiar with these provisions. 115 BAC is a new provision introduced by the Finance Act 2020, which allows
individual and HUF to opt for a secondary option. If you do not wish to govern by this, you wish to govern by the special rate, that is 5% change slab, then you can opt for 115 BAC. In such a situation, there are plenty of deductions, exemptions, additional depreciation, all those things would not be allowable. Now the auditor is being asked that you have to specify whether the assessee has availed this option or not. Again, I feel this would be a big problem. Sometimes it has been decided, sometimes it is not decided. You say that assessee is availing this option. However, at the time of filing of return, situation changed, assessee did not avail this option. This may come up because there is very specific situations are there. But again, the finance sector introduced it, and this is there in section. So basically, previously there were three options: 115 BA, 115 BAA, 115 BAB. This year, two new section has been introduced, that is 115 BAC and 115 BAD. BAD, we are not very much concerned about it because BAD refers to cooperative society. I think Shankar Bhaiya would be there, who is dealing with cooperative society. Ashutosh and few other members are dealing with cooperative society. Not all members are really dealing with the cooperative societies. But yes, for cooperative society, 115 BAD would be there. So while auditing for cooperative society, we have to look after a BAD, and for auditing for individual and HUF, we have to look for 115 BAC. Ashutosh, do we need to go with 115 BAC? What is exactly the section is? Ashutosh? Yes, sir. We need to go with 116 BAC? Is it required? You should decide. You should. Okay, I will just give a glimpse of it. No problem. I will give a glimpse of it. Yeah. Just a small glimpse. This is what is section 115 BAC. Again, everyone can recall it. A slab rate starting with 2.5. Every 2.5 lakh change, 5% rate has been changed. This section is available only when you forego plenty of things, which start with this: without any exemption or deduction under the provisions of clause 5 of section 13, section 10, section 24, section 32, 33, 33D, 32AD, 57. Plenty of sections, you have to forego all the benefits. Then next is without set of any loss. Without set of any exemption, deduction, allowance, perquisite by whatever name called, provided under any other law for the time being in force. The loss and the depreciation referred to in clause 2 above, that is the additional depreciation. Nothing contained in this section shall apply unless it is excised in the prescribed manner by the person. आपको अगर ये सारे इस सेक्शन का बेनिफिट चाहिए है, तो what you have to do, you have to specifically excise this option, and then only this benefit will be available. The important part एक और है last proviso, provided that the option under clause 1, once exercised for any previous year, can be withdrawn only once for the previous year, other than the year in which it was exercised, and thereafter the person shall never be eligible to exercise this option under this section, except where such person ceases to have any income from the business or profession, in which case the option under clause 2 has been available. That means एक बार आपने, अगर if you are doing a business, आपने एक बार ये option exercise कर लिया, it is forever. एक बार withdrawal का option आपके पास available होगा. एक बार withdraw कर लिया तो अब दूसरी बार वापस से avail करने का option आपके पास नहीं बचेगा. So अगर हमने ये option exercise किया है कि नहीं किया, इस सारा का कहानी है जो हम बात कर रहे थे इस clause में. So this clause asks us to report whether the assessee has availed this option or not. Exactly clause 8A क्या हो गया, अब ये देखते हैं. Whether the assessee has opted for taxation under section 115 BA, 115 BA, 115 BAB, 115 BAC and 115 BAD. 3 sections जो हैं वो तीनों कंपनी को रिलेट करते हैं. फर्स्ट 3 सेक्शन जो लास्ट ईयर ही आ गए थे. लास्ट के 2 सेक्शन में एक इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए है जो अभी 2020 से आया, एंड दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज की है. मूविंग अहेड,
नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है क्लॉज 17। क्लॉज 17 में जो अमेंडमेंट आया है दैट इज फॉर रिपोर्टिंग ऑफ सेफ हार्बर। जो हायर सेफ हार्बर हमको मिला ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, ये कहा गया कि भाई रियल एस्टेट में डाउनफॉल है, बिल्डर्स के पास बहुत सारे फ्लैट्स बन के पड़े हुए हैं, डुप्लेक्सेस बन के पड़े हुए हैं, लैंड पड़े हुए हैं जो कि नहीं बिक पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप कम रेट पे अपना माल डिस्चार्ज कर सको, तो गाइडलाइन वैल्यू से कम पे अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो जो गैप पहले 10% तक का परमिसिबल था उसको एनहांस करके 20% तक का कर दिया गया है। बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू 43CA, दैट मींस इन केस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। करस्पॉन्डिंग चेंज आया है सेक्शन 56(2)(10) में। इसमें बहुत ध्यान रखना है कि दिस इज ओनली फॉर 43CA, नॉट एप्लीकेबल फॉर 50C। सो रीसेल कंडीशन में नहीं आएगा, सिर्फ बिल्डर्स के केसेस में आएगा। ये वो चीजें जो अपन डिस्कस कर चुके। इस पे जो टाइम लिमिट है दैट इज फॉर द पीरियड फ्रॉम 12th नवंबर 2020 टू 30th जून 2021। हमको ऑडिट करते समय ये ध्यान रखना है कि ये के क्लॉज सिर्फ वही अप्लाई करेगा जहां पे सेल ट्रांजैक्शन मेरा 12th नवंबर के बाद हुआ है, और 30th जून तो चलो नहीं आया, 31st मार्च पे हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज 3CD में इस साल भी है और डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर भी रहेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड 30th जून तक चल रहा है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी हमको ये चीज आगे ले जानी पड़ेगी। एक और स्पेसिफिक बात है, इट इज ओनली फॉर प्राइमरी सेल ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेल? प्राइमरी सेल मीन्स फर्स्ट टाइम सेल मेड बाय द बिल्डर। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रीसेल। आपने परचेज करके रीसेल भी किया तो उसके लिए अवेलेबल नहीं, प्राइमरी सेल है। और दूसरा कैपिंग लगाई हुई है अप टू ₹2 करोड़। अगर 2 करोड़ से ऊपर का स्टॉक इन ट्रेड अगर बिल्डर ने बेचा है तो उस पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर ये सिचुएशन है और ऐसा कुछ भी आया हुआ है तो देन वी हैव टू डेफिनेटली रिपोर्ट। कैसे रिपोर्ट करना है, ये एग्जैक्ट जो क्लॉज आया वो ये है, where any land or building or both is transferred during the previous year for a consideration less than adopted or assessed or accessible by any authority of the state government referred to in section 43CA or section 50C। ये क्लॉज है। इसमें क्या पूछ रहा है? डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, consideration received, value adopted or assessed, and whether the provisions of second proviso to subsection 1 of section 43CA or fourth proviso to clause 10 of subsection 2 of section 56 is applicable। ये वही सेक्शन है जिसकी हमने अभी बात की, सेफ हार्बर वाली बात। सो अगर सेफ हार्बर का मेरा सेक्शन अप्लाई करता है, दैट मींस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन 12th नवंबर टिल 31st मार्च। ऐसी कंडीशन में मेरे को बीइंग एन ऑडिटर यहाँ पे यस करना पड़ेगा, तो वो 20% का कैप की बात मिलेगी। अगर हम यहाँ पे नो करते हैं तो 20% कैप की बात नहीं मिलेगी। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्लॉज। जितने भी बिल्डर्स का हम ऑडिट करेंगे उसमें हमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। मूविंग अहेड, फोर्थ चेंज हमारा क्या कहता है? चेंज इन क्लॉज 18 रिलेटेड टू एडजस्टमेंट इन WDV ऑफ द एसेट। क्यों जरूरत पड़ेगी हमको? एडजस्टमेंट टू बी रिटन डाउन वैल्यू अंडर सेक्शन 115BAC फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। अभी हमने देखा था कि अगर हम ऑप्शन यूज करते हैं 115BAC का तो हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन एलिजिबल नहीं होगा। फिर बाद में एक प्रोविजन आया जिसमें कहा गया कि एडिशनल डेप्रिसिएशन तो एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर पुराना कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन मेरे पास पड़ा हुआ है तो वो आगे कैरी ओवर भी नहीं होगा। अब आगे कैरी ओवर नहीं होगा तो वो लैप्स हो जाएगा। तो एक और चीज आई, उसने कहा कि आज आपका लैप्स नहीं करेंगे, आप उतनी अपनी WDV बढ़ा लीजिए। अब ये जो एडजस्टमेंट होना है मेरी WDV में, दैट मींस एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मेरा सेट ऑफ नहीं हुआ था, जिसको मैंने कैरी ओवर किया नेक्स्ट ईयर के लिए, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर मेरे पास अभी कैरी ओवर होकर आ रहा है तो उतने एडिशनल डेप्रिसिएशन से मेरे को अपनी ओपनिंग WDV बढ़ानी है। ये एडजस्टमेंट के लिए क्लॉज 18 आया, इसमें कहा गया कि हमको ये एडजस्टमेंट यहाँ पे डालना है, उससे मेरी ओपनिंग WDV बढ़ जाएगी और करस्पॉन्डिंगली इस ईयर का डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा और फर्दर ईयर्स का डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली एंट्रीज हमको हमारी बुक्स में भी पास करनी पड़ेगी, सो दैट हम कहीं ना कहीं उसका सिंक्रोनाइजेशन कर सकें, वरना हर बार एज पर बुक्स डेप्रिसिएशन कुछ और आएगा और एज पर रिटर्न और एज पर ऑडिट रिपोर्ट डेप्रिसिएशन कुछ और आएगा। तो जिसकी भी बुक्स में एडिशनल डेप्रिसिएशन का अगर कोई क्लॉज है और उसने 115BAC का प्रोविजन ऑप्ट किया हुआ है, उनके केसेस में ये क्लॉज 18 इफेक्टिव होगा। 90% केसेस में क्लॉज 18 इफेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ हमको नॉट एप्लीकेबल लिख के शायद आगे जाना पड़ेगा।
क्योंकि ये पूरा पूरा एडजस्टमेंट रिटर्न ऑन वैल्यू की बात करता है। नेक्स्ट चेंज इन क्लॉज नंबर 32, अगेन ये वही चेंज है जो हमने पिछले में बात किया, कि मेरे को ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं मिलेगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरे को WDV बढ़ जाएगी। वो जो अमेंडमेंट था वो WDV के क्लॉज में था, ये जो अमेंडमेंट आया वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के क्लॉज में है। अगर 115 BAC मैंने ऑप्ट कर लिया है या 115 BAD मैंने ऑप्ट कर लिया है, तो उन दोनों ही सिचुएशन में मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस उतने से कम हो जाएगा। तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मुझे कम करना है उसका डिटेल मुझे इसमें डालना है। ये उसका जो नया चार्ट आया ये उसमें वो आ गया, जिसमें ये कहा गया है 5th नंबर पॉइंट में, ऑल लॉसेस और अलाउंसेस नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BBA, 115 BAC, 115 BAD। आप 5th नंबर का जो कॉलम है देख पा रहे हैं, इस पे हमको डालना है कि कितना हमको ये अलाउबल नहीं है, सो दैट मेरा जो लॉस है वो उतना लॉस एडजस्ट हो जाएगा, उतने लॉस मेरा रिड्यूस हो जाएगा और बाकी लॉस मेरा आगे कैरी ओवर होता रहेगा। ये है मेरा 3CD का लास्ट अमेंडमेंट। एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले लगता था, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इस साल से अलग हो गया है, डिविडेंड रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल हो गया है, इसलिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का जो क्लॉज 36 था वो ओमिट कर दिया गया। सो दीज वर द 6 अमेंडमेंट व्हिच वर मेड इन 3CD। रिमेनिंग पूरी 3CD एज इट इज है जो हमारी लास्ट ईयर की थी, और कोई चेंज नहीं है। अगर हम चेंजेस को डिस्कस करें अभी तो बेसिक फिंगर टिप्स पे पहला मेरा रिवीजन ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। बाकी वो सारे ऑप्शंस वही हैं जो अमेंडमेंट हुए हैं एक्ट में, चाहे वो मेरा 43 CA का हो या 115 BBA का, 115 BAB का, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आया। तो दिस इज ऑल अबाउट अमेंडमेंट इन 3CD। नाउ वी विल मूव ऑन टू अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स फॉर AY 21-22। अगेन वापस से बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली थ्योरेटिकल, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी भी फॉर्म्स का स्कीमा अवेलेबल नहीं है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। सो एग्जैक्टली कहाँ हिट कर रहा है ये मैंने अभी चेक नहीं किया, आई एम जस्ट गोइंग विद द सर्कुलर व्हाट हैज बीन नोटिफाइड। नोटिफिकेशन जो आया था दैट वाज नोटिफिकेशन नंबर 21 डेटेड 31 मार्च 2021। इससे इसको सारे फॉर्म्स हमारे नोटिफाई किए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ITR 1 and ITR 4 cannot be filed in case of deferment of tax on ESOP allotted by the eligible startups। ज्यादातर एलिजिबल स्टार्टअप्स या के जो ये फॉर्म्स होते हैं जो बेसिकली सैलरीड एम्प्लॉय को अपन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम अवेलेबल होती है, उनके लिए जनरली फॉर्म 1 आता है। लेकिन अगर किसी केस में स्टार्टअप में ये आया हुआ है एंड उसके बाद इस ESOP के बाद भी अगर आपने इसको डिफर किया, अगर इस चीज को डिफर किया हुआ है तो हम ITR 1 में फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं कि हम कब तक डिफरमेंट कर सकते हैं। एक छोटे सा ब्रीफ में इसको देखते हैं। The tax is required to be paid or deducted in respect of such ESOP within 14 days from the earliest of the following period। कौन-कौन से पीरियड है? After the expiry of 48 months from the end of the assessment year relevant to the financial year in which ESOP was allotted। 4 साल तक का टाइम लेवल डिफर करने के लिए। From the date the assessee ceases to be an employee of the organization, अगर assessee उस ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ देता है तो आ जाएगा। एंड फ्रॉम द डेट द सेल ऑफ शेयर अलॉटेड अंडर ESOP, अगर असेसी जिसको शेयर अलॉट हुआ है वो अपने शेयर बेच देता है तो आ जाएगा। 48 मंथ्स तक का डिफरमेंट अवेलेबल है, और अगर असेसी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता तो ESOP का जो टैक्स है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इन सिचुएशंस में ESOP का टैक्स टैक्सेबल हो सकता है। तो अगर किसी ने भी डिफरमेंट का ऑप्शन लिया हुआ है तो उस कंडीशन में ITR 1 और ITR 4 फाइल नहीं हो सकता। ये रिपोर्टिंग करना एक स्पेसिफिक शेड्यूल है ESOP का, यहाँ पे जाके हमको रिपोर्टिंग करना होता है कि कितना टैक्स बन रहा है मेरा और कितने टैक्स को मैंने आगे डिफर किया हुआ। 194N काफी फैमिलियर सेक्शन लग रहा होगा सभी को, काफी हंगामा हुआ था इस सेक्शन को लेके, जो कि कैश विड्रॉल्स के ऊपर था। जस्ट एक ग्लिम्स के लिए वापस से सेक्शन देख लेते हैं क्या है। ये हमारा सेक्शन 194N। ये क्या कहता है? एवरी पर्सन पे एप्लीकेबल है अदर देन बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस को छोड़कर, हु इज रिस्पांसिबल और पेइंग इन सम, क्या करता है? कैश एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन बाय द रिसिपेंट व्हिच शैल बी एट अ टाइम ऑफ पेमेंट अ सम
डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 2%। अगर मैं कैश विड्रॉ कर रहा हूँ 1 करोड़ से ज्यादा है तो मेरा 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाता है 194 में। फिर इसमें आया कि आपने रिटर्न अगर प्रॉपरली फाइल नहीं किए हैं तो दिस लिमिट वुड बी रिड्यूस्ड। वहां कैश लिमिट कितनी कर दी गई, एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज, 20 लाख तक 2% और उससे ज्यादा आएंगे तो 5%। अगर ये कंडीशंस मेरी फुलफिल हो रही हैं तो 194 में मेरा टीडीएस कटा होगा। अगर 194 में टीडीएस कटा है तो आईटीआर 1 नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। वैसे भी जनरली कैश विड्रॉल्स सैलरीड केसेस में होते नहीं है इतने बड़े, तो 19 आईटीआर 1 की का सिचुएशन इन जनरल नहीं आनी चाहिए। फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफिक आया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, मुझे नहीं लगता जरूरत थी, बट ओके चलो ठीक है लाए हैं। नो ऑप्शन टू कैरी फॉर टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। एक सेक्शन है सेक्शन 199 रेड विद रूल 37BA, जो ये कहता है कि जिस साल मैंने इनकम ऑफर की है मुझे उस साल ही उस इनकम से रिलेटेड टीडीएस लेना चाहिए। अब 194N जो सेक्शन है वो टीडीएस काटता है मेरे कैश विड्रॉल में। उस कैश विड्रॉल की इनकम कब अक्रू हुई है तो मुझे पता ही नहीं, या उस कैश विड्रॉल से कोई इनकम अक्रू भी हो रही कि नहीं हो रही, या किसी इनकम का मैंने कैश विड्रॉल किया, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही। इसलिए उन्होंने कहा है इसमें कि 194N का जो भी टीडीएस है वो जिस साल आपको डिडक्ट हुआ है आप उसी साल पूरा क्लेम कर लीजिए, और उसके बाद जो रिफंड बनता है वो एलिजिबल रिफंड क्लेम कर लीजिए। दैट मीन्स सेक्शन 199 और रूल 37BA का इम्पैक्ट जो है वो 194N के टीडीएस पे नहीं है। 194N का पूरा टीडीएस हमको उसी साल क्लेम कर लेना है जिस साल मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ। नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन लायबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम पहले हम कहां दिखाते थे, एग्जम्प्ट इनकम्स में दिखाते थे, अब हम कहां दिखाएंगे, अदर सोर्सेज की इनकम में। इसलिए जो शेड्यूल है मेरा अदर सोर्सेज का, उसमें अब मेरे को एक सेकंड, अब मेरे अदर सोर्सेज का जो शेड्यूल है उस अदर सोर्सेज के शेड्यूल में मेरे को डिविडेंड इनकम का भी पॉइंट आ गया है। पहले वहां से अलग कर दिया गया था, अब डिविडेंड इनकम का पॉइंट भी आ गया है। उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर मैंने इनकर किए हैं तो उसका भी पॉइंट आ गया है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट और आई है, हम डिविडेंड का क्वार्टरली ब्रेकअप भी डाल सकते हैं। अब डिविडेंड के क्वार्टरली ब्रेकअप का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों चाहिए मुझे डिविडेंड का क्वार्टरली ब्रेकअप? डिविडेंड का क्वार्टरली ब्रेकअप विल हेल्प मी इन डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी मेरी कब आ रही थी, इस डिटरमाइन करने के लिए उसमें क्वार्टरली ब्रेकअप का ऑप्शन भी आ गया। मैं क्वार्टरली ब्रेकअप डाल पाऊंगा डिविडेंड का, और क्वार्टरली ब्रेकअप डालूंगा तो अकॉर्डिंगली मेरी 234C के इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी प्रॉपर आ पाएगी। अब थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज होगी टैक्स ऑडिट की। जो हमारा क्लॉज था कि हमारा ऑल कैश रिसीट्स इज लेस देन 5% एंड कैश पेमेंट्स इज लेस देन 5%, इसका पहले लिमिट थी 5 करोड़, इस असेसमेंट ऐसे कर दी गई इसको 10 करोड़। तो जो ऑप्शन पिछले साल हमको रिटर्न फाइलिंग के समय पूछता था कि भाई क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, सेम इस बार भी आएगा। स्मॉल मॉडिफिकेशन 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ की लिमिट वहां पे आएगी इस बार। अगेन ये सेक्शन हमको बहुत ज्यादा तंग करने वाला है, चाहे हम टैक्स ऑडिट की बात करें या इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें। 115 BAC वापस आ गए। ये बात करता है कि हमको क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। दिस कैन बी ऑप्टेड बाय एन एसएससी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट सर्टेन कंडीशन। वो हमने देखा था क्या क्या कंडीशन हमको फॉलो करना है, तब हम ये क्लेम कर सकते हैं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आगे हमको नहीं मिलेगा, अगर कुछ बचा हुआ तो अकॉर्डिंगली हमारा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। सिमिलर तो इसमें अगेन जो हमने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देखा था वो यहाँ पे भी आएगा। क्या चेंज होगा मेरा, अगर मेरे पास कोई ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज है जिसको मैं कैरी ओवर कर रहा था जो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, तो मेरा इनकम टैक्स रिटर्न में भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का शेड्यूल भी चेंज होगा और मेरी WDV का शेड्यूल भी चेंज होगा। सिमिलर वही प्रोविजन जो हमने अभी 3CD में देखे थे, सेम प्रोविजन वापस से इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे। तो मेरे पास अगेन दोनों शेड्यूल चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे मुझे। एक मेरा WDV ओपनिंग बढ़ानी पड़ेगी, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पुराना पड़ा हुआ है सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन का, उतने यहाँ चेंज करना पड़ेगा, WDV बढ़ानी पड़ेगी उससे, और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को उतने अमाउंट से कम करना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज।
इसमें हमको एक चीज और याद रखनी है कि ये जब हम ये इसका एक्सरसाइज करेंगे अगर ऑप्शन ई, तब हमको एक स्पेसिफिकली फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड दैट इज विद इन द ड्यू डेट। अगर हम वो फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो हमको ये ऑप्शन 115 बीएससी का नहीं मिलेगा। एक नेक्स्ट सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 80M। 80M क्या सेक्शन है कि अगर एक कंपनी को डिविडेंड मिला है और उस इनकम से उसने आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उस कंपनी की इनकम नहीं मानी जाएगी। रेयर कंडीशन है जो हमारे यहाँ ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पे केस एप्लीकेबल हो, बट यस अगर ऐसे केसेस एप्लीकेबल हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन आईटीआर में लाया गया है जहां हमको बताना पड़ेगा कि कितना डिविडेंड हमको रिसीव हुआ है, उसका करस्पॉन्डिंग कितना डिविडेंड हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है, उतने का हमको डिडक्शन मिल जाएगा 80M। ये एक सेक्शन जो ये जो एक स्पेसिफिक पॉइंट था डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का, जो लास्ट ईयर के रिटर्न में लाया गया था। लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड मार्च में लॉकडाउन हो गए थे, सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाए थे, इन्वेस्टमेंट्स की टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी गई थी, पहले 30 जून तक के लिए, बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया था 30 जुलाई तक के लिए। तो ऐसा जो एक्सटेंशन हुआ था मेरा, उसके कारण लास्ट ईयर के रिटर्न में एक स्पेसिफिक कॉलम आया था जो ये पूछता था कि वेदर यू हैव एक्सरसाइज्ड दिस ऑप्शन। हम यस करते थे, उसके बाद हम डिटेल डालते थे कि हमने कौन सा इन्वेस्टमेंट किया है और किस डेट पे किया हुआ। चूंकि इस बार ऐसा कुछ नहीं है तो जो पिछली बार का एक एडिशनल कॉलम था वो इस बार के रिटर्न से डिलीट कर दिया गया। अब अगेन एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 115 बीएसी। जब हम बात करते हैं 115 बीएसी में स्पेसिफिकली हमको कहां पूछा जाएगा। सो इन पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन जो है, द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू चूज whether he is opting for alternative tax regime of section 115 BAC or not। हमको पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन में जाकर बताना पड़ेगा। अगर हम यस करते हैं तो फर्दर द एसएससी हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज सच ऑप्शन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय फाइलिंग फॉर्म 10IE। Thus, such assessee is required to mention the date of filing of form 10IE and acknowledgement number in case he has chosen the alternative regime of section 115 BAC। That means हमको 115 BAC अगर ऑप्ट करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना, फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ेगा। और जब हमारा 10IE फाइल हो जाएगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट ये हमको हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में पुट इन करना पड़ेगा, तभी हमको ये ऑप्शन एलिजिबल एक्सरसाइज होगा। अगर हमने वो फाइल नहीं किया तो हमको नहीं मिलेगा। जैसे हम 89(1) के लिए लेते हैं, 89(1) के लिए हम फॉर्म फाइल करते हैं और उसका डिटेल हमको डालना पड़ता है। नई फॉर्म के लिए फाइल किया तो 89(1) का डिडक्शन सीपीसी अलग कर देता है। सिमिलरली है, अगर हम फॉर्म 10IE में फाइल कर देंगे, उसके बाद उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट यहाँ डालेंगे, तब हमको ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था जो कि 194 LC में आया था। 194 LC में पहले एक प्रोविजन होता था 5% टीडीएस का, बाद में इसमें एक और लेके आए 4% टीडीएस। ये बेसिकली जो क्या बात करता है, The Finance Act 2020 is amended section 194 LC to provide for deduction of tax shall be done at the rate of 5% except in the case of interest is payable in respect of money is borrowed from a source outside India by way of issue of any long-term bonds or rupee denomination bonds। तो अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और रिपीट डिनोमिनेशन बॉन्ड्स के कोई अगर इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट पे रेट ऑफ टीडीएस जो होगा वो 4% हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है जो कि अपने यहाँ कंजोलपुर बैठे हैं, बहुत कम सिचुएशन में ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली क्लॉज बाय क्लॉज डालना पड़ेगा कि कितना ऐसा इंटरेस्ट है इस पे 4% टीडीएस एप्लीकेबल है और कितना ऐसा है इस पे 5% का टीडीएस एप्लीकेबल। अगेन ये 50C का सेफ हार्बर है जो कि पहले 105% पे था लास्ट ईयर तक, और इस साल हमारे पास 110% के केसेस में। बिल्कुल सिमिलर प्रोविजंस हैं। पिछले साल 105% तक हमको सेफ हार्बर अवेलेबल था कैपिटल गेन के केसेस में, इस बार 110 है। तो 43CA में हमारे पास जो हमने ऑलरेडी देखा था 3CD में कि 43CA में 20% का हमारे पास ऑप्शन आ गया। अभी हमने जैसे देखा 115 BAC का इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF।
सिमिलर प्रोविजन अप्लाई करेंगे 115 BAD इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केसेस में 115 BAD है, उसका भी जनरल इंफॉर्मेशन है। उसके लिए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 10IF। वहां पे 10IE था, यहाँ पे फॉर्म होगा 10IF। हम फॉर्म 10IF फाइल करेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी हमको स्पेशल जो रेट्स हैं वो मिल जाएंगे। डोनेशन ऑफ 80 GGA। 80 GGA जो डायरेक्शन की बात करता है डोनेशन की, वो सिर्फ 2000 रुपीज तक के कैश डोनेशन की बात करता है। उसी को यहाँ इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि आपको 2000 तक का ही कैश डोनेशन फॉर्म में अवेलेबल होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो हमको वहां जब हम डिटेल डालेंगे तो हमको बताना पड़ेगा कि कितना कैश है और कितना नहीं। अगर कैश डोनेशन हमारा 2000 तक का है तो उतने एलिजिबल मिलेगा, बाकी मेरे को डोनेशन का एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। ये एक नई चीज है। फॉर्म 16D एक नया फॉर्म है। सेक्शन 194M क्या कहता है? 194M provides that every individual or HUF who is not required to pay tax under section 194C, 194H and 194J shall deduct tax at source under the provisions at the rate of 5% from the payment made to a contractor or a commission agent or a broker or the professional। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? उसको 194M में TDS काटेगा और फॉर्म 16D में TDS सर्टिफिकेट इशू करेगा। एक छोटा सा इसको भी देखते हैं कि क्या कंडीशन है, कब हमको ये TDS काटने की लायबिलिटी आती है। ये है आपका सेक्शन 194M। 194M में अपन स्पेसिफिकली सिर्फ बात कर लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच रिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड if such sum or as the case may be the aggregate of such sum credited or paid to a resident during the financial year does not exceed 50 lakh rupees। 50 लाख से कम का अगर पेमेंट है तो दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। बट अगर ऐसा कोई असेसी है जिसने कोई वर्क कराया है, कोई कमीशन दिया है, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज ली है, जनरली TDS की एलिजिबल लाइबिलिटी में नहीं आता है और 50 लाख से ऊपर का पेमेंट किया है तो 194M में 5% TDS काटना है। TDS काटने के बाद उसको रिटर्न भरनी, और रिटर्न भरने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट इशू करना है वो सर्टिफिकेट इशू करना है फॉर्म 16D में। तो इसीलिए फॉर्म 16D का रेफरेंस यहाँ पे आ गया इनकम टैक्स रिटर्न में कि फॉर्म 16D में जो भी TDS वगैरह काटा हुआ है वो डिटेल आपके सर्टिफिकेट में आ जाएगा। Adjustment of unabsorbed depreciation and losses in case of assessee opting for section 115 BAA has been removed। 115 BAA क्यों अलग कर दिया? क्योंकि ये इसलिए अलग कर दिया क्योंकि ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल था। जैसे भी हमने देखा 115 BAC जो इंडिविजुअल एंड HUF के लिए इस साल इफेक्टिव है, तो उसके जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में चेंज हुआ है। सिमिलरली 115 BAA जो कि कंपनी के लिए अप्लाई करता था, उसके अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्लॉज लास्ट ईयर लाए थे, इसलिए इस साल उस वाले को पूरे पॉइंट को इनकम टैक्स रिटर्न से अलग कर दिया गया। अब हमको जब हम कैपिटल गेन्स वर्कआउट करते हैं, खासतौर से शेयर ट्रेडिंग का, जहां हम ग्रैंडफादरिंग वगैरह करते हैं, वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछता है। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन पूछता है, देखते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमसे वहां पूछता है। इसमें इस साल क्या अमेंडमेंट कर दिया है, सिर्फ एक कॉलम चेंज कर दिया उन्होंने कि हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जिस चीज की हम डिटेल डाल रहे हैं वो शेयर है या यूनिट है। ये हम कॉलम देख रहे हैं, ये शेयर है यूनिट है, इस चीज के बारे में हमको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि ये है क्या, यूनिट्स है या शेयर है। एक चीज का यहाँ चेंज किया हमने। दूसरी चीज का चेंज किया है इस वाले कॉलम में, जहां पे इनने फुल वैल्यू कंसिडरेशन का एक कॉलम और ऐड कर दिया। हम ग्रैंडफादरिंग में क्या करते हैं कि स्पेसिफाइड डेट तक हमारे पास 1/2/2018 तक की जो 31 जनवरी 18 की जो वैल्यू थी हमारी शेयर्स की, वो लॉक कर दी गई थी। वहां तक हमको कैपिटल गेन्स नहीं लगता, उसके आगे जितना प्रॉफिट हो उस पर कैपिटल गेन्स लगता है। हम ग्रैंडफादरिंग करके निकालते हैं। अब कोई शेयर मेरे जो उसके बाद परचेज किए हैं वो अगर आज सेल हो रहे हैं तो उस कंडीशन के लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन का एक कॉलम ऐड कर दिया है। तो बेसिकली इस पे दो चेंजेस आए आपके। पहला चेंजेस आया जहां पर उन्होंने क्या बोला आपको कि हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमने एग्जैक्टली क्या बेचा है, तो शेयर से या यूनिट हमको वो बताना पड़ेगा। और सेकंड हमारा जो अमेंडमेंट आया वो उस पॉइंट पे है कि हमको जो फुल वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू कंसिडरेशन वहां पे दिखा सकते हैं।
एक और अमेंडमेंट आया है जो कि मेरे को नहीं लगता जबलपुर में कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, जो कि शेड्यूल 5A में आया है। रिक्वायर एसएससी टू फर्निश टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पाउस अंडर सेक्शन 44AB और 92E। ये बेसिकली अप्लाई करता है गोवा में, दमन दीव में, जहां पे पोर्चुगीज सिविल कोड आज भी अप्लाई करता है। पोर्चुगीज सिविल कोड के कुछ प्रोविजंस हैं जो ये कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ या स्पाउस की इनकम आपस में स्पेसिफिक प्रोपोर्शन पे शेयर होगी। ऐसी कंडीशन में अगर हस्बैंड का टैक्स ऑडिट होता है तो उसकी इनकम शेयर होगी वाइफ की इनकम। ऐसी कंडीशन में अगर वाइफ नॉन ऑडिटेड है तो उसके लिए ड्यू डेट पहले की हो जाएगी और हस्बैंड की ड्यू डेट बाद की होगी, तो वाइफ की रिटर्न फाइल करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वहां पे इनकम शेयर्ड होती है। इसीलिए ये प्रोविजन चेंज लाए यहाँ पे, सो दैट अगर हम यहाँ पे स्पाउस के टैक्स ऑडिट का डिटेल डाल देंगे, अगर हमारे पास पोर्चुगीज सिविल कोड अप्लाई करता है तो दूसरा जिस स्पाउस का ऑडिट नहीं हो रहा है उस स्पाउस के लिए भी ड्यू डेट एक्सटेंडेड होगी। सिर्फ इतना सा पार्ट है इसमें, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से यहाँ पे अप्लाई करेगा, या किसी के पास क्लाइंट है दमन दीव का या गोवा का कोई क्लाइंट यहाँ काम कर रहे हैं तो यस दिस विल अप्लाई। सीलिंग टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 54E, मुझे लगता है ये सिर्फ कहने पर अमेंडमेंट है, लॉ में तो ऐसा कोई था ही नहीं पहले भी। 2015 में लॉ चेंज हो गया। ये क्या कहता है कि ITR 5 जो है, ITR 5 फॉर्म में ऐसा कोई बैन नहीं था पहले से कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी बेची है, सपोज करिए मैंने प्रॉपर्टी बेची अक्टूबर में, तो मुझे 54EC में इन्वेस्ट करने के लिए टाइम लिमिट अवेलेबल है 6 मंथ्स का। 6 महीने के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है। अब 6 महीने चूंकि मेरे 2 फाइनेंशियल ईयर में फॉल करते हैं, तो मैं एक साल पहले 50 लाख इन्वेस्ट कर लूं और नेक्स्ट ईयर फिर 50 लाख इन्वेस्ट करूं। यस दिस इज पॉसिबल अप टू 2015 में ये बंद कर दिया गया कि नहीं, अब आप 2 फाइनेंशियल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सारे ITRs में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया कि दिस वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड ITR 5, तो इस साल ये प्रोविजन भी ITR 5 में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। ऑल टुगेदर 54EC में तो प्रोविजन ऑलरेडी पहले से ही चेंज है, इसलिए ये दिस इज जस्ट अ अमेंडमेंट, इम्पैक्ट उसका कुछ आएगा नहीं। अब 80P हम क्लेम करते हैं इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 80P में हम जब क्लेम करते हैं तो 80P में ने क्या कर दिया है कि जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए डिडक्शन क्लेम करेंगे तो 80P के बहुत सारे क्लॉजेस और सब क्लॉजेस हैं जिस पे डिडक्शन क्लेम किया जाता है। अब क्या कर दिया, हमको हर क्लॉज और सब क्लॉज के साथ जिसका भी हम बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं उसका हमको कोड डालना पड़ेगा। आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, ये है चार्ट जिसमें नेचर ऑफ बिजनेस कोड ये एक लाइन ऐड कर दी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 80P के किस क्लॉज में एग्जैक्टली हम फॉल कर रहे हैं और उस क्लॉज का नेचर का कोड क्या है। हम बाकी चीज तो अभी भी डालते थे, सिर्फ आपसे हमको एक नेचर का कोड और डालना पड़ेगा। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट 80P के लिए और किया गया। दैट इज ऑल जो मेरे तरफ से मुझे लगा। ये चीजें जो अमेंडमेंट हुई हैं, मुझे लगता है मैंने बहुत ब्रीफली कंप्लीट कर लिया चीजों को, क्योंकि इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स थे नहीं जितने अपने को डिस्कस करने वाले लायक थे, वो मैंने डिस्कस कर लिए। अभी भी हो सकता है शायद कुछ अमेंडमेंट छूट गए, क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्टिव अमेंडमेंट्स पिकअप किए थे जो मुझे लगा कि यहाँ पे यूजफुल है। नाउ ओवर टू संचित, अगर कुछ और डिस्कशन अपन करना चाहते हैं तो अपन कर सकते हैं। मेंबर्स जिनको भी कुछ क्वेरीज हैं तो वो प्लीज क्वेरीज पूछ सकते हैं। दे कैन राइट इन द चैट बॉक्स और दे कैन रेज देयर हैंड्स, तो उनको हम अनम्यूट कर देंगे तो वो क्वेरीज पूछ सकते हैं। Sanchit, I think there was hand raised by Anil sir. Yes, Anil sir. अनिल सर को अनम्यूट करते हैं सर। सर अनिल सर को कर देंगे। सर से कुछ ज्ञान मिल जाएगा अपने को भी। सर अनिल सर आप अनम्यूट कर लीजिए या प्लीज। हेलो सर गुड हेलो इवनिंग। यस सर गुड इवनिंग अरे सर कैमरा तो ऑन कर लीजिए अपना। कैमरा अरे तो बिना उसके नहीं है। अच्छा ठीक है। अरे सर आपकी शक्ल देखे बिना आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हाँ दाढ़ी बड़ी हुई है भाई। अरे सर आपकी शक्ल दिख जाती तो वैसे थोड़ा सा मतलब मॉरल बूस्ट मिल जाता ना। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। इट इज ओके सर। सर 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 अभी आपने बोला कि रिवीजन का, तो ऑडिट रिवीजन की बात हो रही थी। हाँ सर। तो मेरा आपसे ये कि सर ऑडिट रिवीजन तो हम पिछले 6 मतलब जब से आया तब से करते चले आ रहे थे। बिल्कुल ठीक है सर। क्या वो जो पहले जो हमने रिवीजन किया क्या वो विदाउट फोर्स था क्या? अब स्पेसिफिकली गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। पहले इसको कहीं भी कोई भी एक्ट में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था रिवीजन का।
आपने ध्यान दिया होगा कि ऑडिट बिल्कुल सही रिपोर्ट का इवन जो अभी हमने क्या हुआ कि जैसे कि पीएफ का जो डिडक्शन थे पहले डिसअलाउ नहीं होते थे, अब वो डिसअलाउ होने लगे। तो कुछ में ऐसा हुआ कि हम लोगों से या जैसे मेरे ऑडिट करते समय गलती हो गई, तो पार्टी फिर हमारे यहाँ ही बोले सर आप ही ने गलत भर दिया। तो हमने उसको देखा और हमने उसको मतलब रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद वो हमारा एडिशन खत्म हो गया। अब सवाल उठता है कि ये जो रिवीजन का जो पावर हमको जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, पहले ये रिकॉग्निशन नहीं था, तो क्या पहले वाले विदाउट पावर हो गए या विदाउट फोर्स हो गए, इसके बारे में बताएंगे कुछ सर? सर मेरा अपना ओपिनियन सर ये है कि पहले जो रिवीजन किए हमने, वो रिवीजन बेसिकली हमने किए कि वी हैव मेड अ मिस्टेक। ये रिवीजन के जो पावर दिए सिर्फ 2 सेक्शन में दिए हैं सर, सेक्शन 40 में और सेक्शन 43 बी में। अगर इसमें कोई चेंज ऑकर हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज इन सिचुएशन, क्योंकि मैंने ऑडिट पहले कर दिया, रिटर्न बाद में फाइल हो रही है, टीडीएस जमा कर दिया बाद में, उसने 43 का पेमेंट कर दिया, तो चूंकि 143 में 1 में एडजस्टमेंट ना हो जाए तो पार्टी आएगी आपके पास रिवीजन कराने के लिए। ओके, तो सर हो सकता है कुछ एडिशनल फीस और देके जाएगी अपने को। नहीं वो तो ठीक है। अब इससे क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई चीज अगर स्पेसिफिक हो गई कि रिवीजन कैन बी डन ओनली ऑन द 2 पॉइंट, अब इसका मतलब हुआ कि जो पहले जो हम पॉइंट ले सकते थे उसमें रिवीजन अभी भी कर सकते नहीं कर सकते? बिकॉज नाउ लॉ हैज रेस्ट्रिक्टेड यू टू मेक रिवीजन ओनली ऑन द 2 पॉइंट। Further question arises कि whether the other point on which we are already doing the revision can now be prevail or not. This has to be discussed. ये क्योंकि सीरियस, क्योंकि अभी जितने भी रिवीजन होंगे, जैसे आपने खुद बोला कि साहब हमको 2 पॉइंट में हमको अलाउ किया है, इसका मतलब कि अदर पॉइंट में हमको अलाउ नहीं किया, फिर इट बिकम्स अ लॉ। मतलब लॉ को पढ़ने का तरीका कि पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में से नेगेटिव पॉपुलेशन लग किया तो बाकी, तो इसके इंटरप्रिटेशन ये हो रहे हैं सीरियस कि अब जो हम रिवीजन करेंगे इनके अलावा कोई रिवीजन होंगे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इट इज माय व्यू। एग्रीड सर, बिल्कुल। मैं ये मान के चलता हूं कि आज भी जो रिवीजन हम कर रहे थे पहले भी, दैट रिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टेक कमिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, नहीं, so many things are there. ऐसा नहीं कि मिस्टेक कमिटेड या पब्लिक प्लेटफॉर्म मिस्टेक कमिटेड नहीं। उसने मतलब कि कोई वाउचर ही नहीं दिया हमको, वाउचर नहीं दिया, पूछता था ना कि क्या रीजन है कर दी। मतलब नॉट कमिटेड बाय सीए, मतलब मिस्टेक एस्केप्ड, मतलब थिंग्स टू बी रिपोर्टेड एस्केप्ड। We should use this word, things to be reported escaped, and then वो हमने रिपोर्ट किया। तो सर ये समय पे पता चलेगा कि क्या व्यू लिया जाता है कि भाई वो जो हमने रिवीजन किए हैं, या अगर इसके अलावा हम कोई रिवीजन करते हैं तो whether that revision is null and void। हाँ, मतलब ये एक नया अभी तक ये क्वेश्चन ये दबा हुआ था, और चूंकि कहीं उसके बारे में था नहीं तो हम उसको मतलब पॉजिटिव पे लेते थे, भाई जहाँ कुछ लिखा नहीं तो मान के चलते थे कि पावर है हमारे पास। हाँ, पर अब आपने जैसे बोला कि केवल 2 पॉइंट पे मैंने स्टडी किया तो केवल वो 2 पे रेस्ट्रिक्टेड हो गया, तो मतलब बाकी का क्या हो गया फिर? तो ये एक नई चीज हमारे लिए हर्डल पैदा करेगी आगे चल के। सर अभी तो ये भी देखना पड़ेगा कि इसका रिवीजन का ऑप्शन कैसे आ रहा है ऑनलाइन। हाँ, अच्छा, और ये केवल फॉर्म में है, एक्ट में तो कोई चेंज नहीं है। फॉर्म में, हाँ, तो सर तो ये कैसे ऑप्शन ऑनलाइन दे रहा है हमको, ये भी देखना पड़ेगा हमको। तो जो पावर जो उसमें करेक्शन का, मतलब जो चेंजेस का रिवीजन का आ रहा है, वो लॉ से कहां बैक, मतलब बैक कर रहा है? लॉ में तो कोई है ही नहीं उस चीज के बारे में। अब सर वो तो क्या होगा जब अपन किसी रिटर्न को रिवाइज करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ वो उतने ही कॉलम खोले रिवीजन में, बाकी कॉलम खोले ही नहीं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब ये मतलब देखते, मतलब ये एक पॉजिटिव नहीं हुई, एक नेगेटिव हो गई। जो अभी तक अपने पास ओपन हैंड था, तो एक डाउट, मतलब एक आईटीओ जो समझदार होगा या जो मीटिंग हमारी सुन रहा होगा, वो पक्के तौर पे एक्शन ले सकता है कि आपको पावर किस पावर में आपने चेंज किया। एज पर रूल्स के अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आपको केवल 2 कंडीशन में अलाउ किया है, तो आपने 3rd कंडीशन में आपने रिवीजन कैसे किया? आपका रिवीजन अलाउबल नहीं है। हाँ, वो तो आएगी सर, ये तो चीजें मैटर वो आती है, वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। बिल्कुल तो ये एक सीरियस, मतलब बहुत ही जो भी देखो क्या होता है आगे चल के, पर ये अफेक्ट करेगा हम लोग उस पे, मतलब वर्किंग के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड करेगा। देखिए सर, अभी हो सकता है इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ गाइडेंस कुछ रिपोर्ट अप करे। हाँ, मतलब ये तो अपनी प्राइमरी जो हमको ऑब्जेक्शन जो प्रॉब्लम समझ में आई, वो मैंने अपन आपसे डिस्कस की कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक टाइप का हो रहा है। यस सर, है ना? यस सर। नेक्स्ट
सर अभी आपने बोला कि बीडीए, तो इसमें कई सारी चीजें हैं कि जिसका मैट क्रेडिट चला रहा है, कम से कम वो उसने लास्ट ईयर एक्सरसाइज नहीं, वो नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि अभी भी सर वो जो तो किसने करना चाहिए, वो तो बहुत बड़ा इशू हो गया सर डिस्कशन का, बहुत बड़ा इशू हो गया। मतलब वो वो सेक्शन में ऑप्शन इसने है, डिस्कस मतलब नहीं वो किया, वो मैंडेटरी बहुत। नहीं है कि आप करें। आपको अगर आपका मैट का क्रेडिट चला आ रहा है, तो बेटर है कि, क्योंकि मैट में अभी भी 18% मेरे ख्याल से, ये 15% हो गया, तो कहाँ आपको 30, आप ओल्ड पे भी जाओगे तो 30% पे जाओगे, और मैट में आपको सिर्फ 15% पे करना पड़ेगा। तो जब तक आपका मैट का क्रेडिट एडजस्ट नहीं होता है, तब तक आप ओल्ड सिस्टम में ही कंटिन्यू करें, उसको कन्वर्ट, मतलब उसको एक्सरसाइज ना करें। एक अच्छी इसमें पॉइंट ये सर एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे अपने को चीजें देखनी पड़ेंगी जब हम उसको एक्सरसाइज करने की बात करेंगे। नहीं, वो तो है ही है, पर जो प्राइमरी जो एक ही चीज पे असर कर रहा है, जो मैंने जो मेरी कंपनी थी मैंने देखा, तो उसमें मेरे को एक ही जगह कि जहां चला रहा है, जहां मैट का क्रेडिट चला रहा है, और 30 और 15% से मतलब, क्योंकि मैं अगर ओल्ड में भी रहूंगा, 30 में मेरे को मैट लगेगा, तो 15 पे आया, तो 15 का मैट का मेरा बेनिफिट मिलेगा, तो भी मेरे को जो टैक्स मिनिमम लगेगी वो जो 15% की लगेगी। तो जहां मेरे पास मैट एप्लीकेबल है, हाँ जी, मिनिमम मैट तक ही इफेक्टिव रेट मतलब, बचेगा सर मेरे पास। हाँ 15 ही बचेगा, 15 बचेगा, 15 ही बचेगा सर। दिस इज द थिंग। सर आगे बढ़ाएं सर, अच्छा लगा आपको सुन के, आगे बढ़ाइए, है ना, आगे बताइए सर। अरे सर आपका फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अरे मुकेश जी नमस्ते। सर भैया मुकेश जी नमस्ते। नीरज जी बताइए। नमस्ते। मैं ये बोल रहा हूँ इसमें सर जैसे वन टाइम ऑप्शन है, तो फ्यूचर आपके 2-4-5 साल की क्या प्लानिंग है? हाउसिंग लोन वाला एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट का एडवांटेज वाला पॉइंट है, आपका एजुकेशन लोन वाला एवरेज, मैंने एवरेज उस एस्पेक्ट से भी 10 लाख से 11 लाख की इनकम है, 10 से 11 लाख की इनकम है, उसको तो एक्सरसाइज करना चाहिए नया वाला। उसके ऊपर पे जाके थोड़ा सा फर्क, मतलब बेनिफिट 10 लाख तक में ओल्ड चलेगा, 10 लाख से ऊपर की इनकम आती है तो आपको नए वाले में करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश लोग नए में ही मतलब बेनिफिट हो रहा है, एक्सरसाइज जैसे कर रहे हैं हम लोग, तो ज्यादा स्टैटिक्स जो आ रहा है सामने कि नए में आपको बेनिफिट है बजाय पुराने के। 10 लाख से कम है तो आप ओल्ड के अंदर बेनिफिट है आपको। सर नॉर्मली सर 80C वाला डिडक्शन तक का अगर क्लेम है तो नए में तो एडवांटेज है, के बियॉन्ड और कोई अगर डिडक्शंस है आपके पास तो डेफिनेटली पुराने में एडवांटेज रहेगा। हाँ, नहीं मैंने एक एवरेज निकाला कि एवरेज 10 लाख के आसपास, 10 to 11 लाख में आपका ओल्ड तक बेनिफिशियल होता है, और 11 लाख के बाद आपको नए वाले फॉर्म में, मतलब नए वाले जो पैटर्न पे फायदा होता है। बिल्कुल सर। और बाकी तो सब्जेक्टिव इंडिविजुअल क्लाइंट पे डिपेंड करेगा। नहीं सर, 3CD का भी एक डिस्कशन जो अपन कर रहे हैं कि रिवाइज करना परमिसिबल होगा या नहीं होगा सर। जैसे ऑलरेडी आपका सीपीसी में सिस्टम परमिट कर रहा था ऑलरेडी आपको पहले से, अभी आप रिवाइज कर पा रहे थे। देखिए अभी कोई चीज ने उस पॉइंट को छेड़ा नहीं था। देखिए क्या होता है कि जनरल, अब ये जो है कि प्रैक्टिस वाइज, मतलब प्रैक्टिस वाइज जनरल, मतलब अलाउ जनरल काम करते करते वो लॉ बन गया। लॉ बनने के कई तरीके होते हैं कि हम कोई चीज को बार बार कर रहे हैं और कोई चीज को नहीं कर रहा, तो इट ऑटोमेटिक बिकम कस्टम। तो अभी तक ये कस्टम बना था, कोई आदमी उसको मतलब छेड़ नहीं रहा था, भाई ठीक है यार हो गया। पर अब जब स्पेसिफिक कोई चीज आ गई, नहीं साहब आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसे करोगे, तो जब कोई चीज को प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन के अलावा अगर मैं आउटसाइड कोई काम करूंगा, तब प्रॉब्लम, फिर मतलब निगाह वाली बात हो गई कि पॉइंट आउट हो गया कि भाई आपको ऐसे करना था, परंतु आपने ऐसा ना करके ऐसे किया है। तो वो अपने लिए आगे चल के थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, मे नॉट बी की, पर जो इससे जो लग रहा है, आपने जब 2 कंडीशन अलाउ कर दी, तो बाकी पे हमने बोला, हमने तो आपके साथ दो जगह के अलाउ किया था, आपने पीएफ वगैरह सब जमा किया है, उसके बारे में रिवाइज कर दो बस, बाकी कैसे कर रहे हो आप। तो ये एक थॉट है। थोड़ा सा ये कि एक बार रिवीजन का सिस्टम है, समझ में आए क्या उन्हें देते हैं रिवीजन के सिस्टम में। वो टाइम लिमिट का भी सर, जैसे क्या पहले तो टाइम लिमिट की ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं थी। अरे वो तो अभी तो टाइम लिमिट भी उन्होंने कंसल्ट कर दी। आज आप फ्री हो, आप तो 3 साल पुरानी आप कर लो रिवाइज। अभी पीएफ के केस में वही मैं बोल रहा हूं 3 साल पुरानी, तो 143A का जो नोटिस आया था वो हमारा खत्म हो गया। ये अच्छा हो गया जो गलती से रिपोर्टिंग हो गई थी हमसे। अब तो सर इस रिवीजन की टाइम लिमिट आ गई 1 साल की। नहीं वही वो बोल रहा हूँ कि सर अब टाइम लिमिट डाल दिया, तो वो पर्टिकुलर जो 3 क्लॉज उन्होंने 3 सेक्शन का क्लॉज बोला है, वो क्लॉज के लिए वो टाइम लिमिट केवल होगी। उसके बियॉन्ड वाले जो भी अगर अपन चेंजेस करना चाहे वो तो उसके लिए टाइम लिमिट, वेट एंड सी। अब तो चीज खुल गई ना, आप समझ में आ गया कि क्या होगा। अब उसके ऊपर डिस्कशन होंगे आगे चल के। नहीं बिल्कुल सही, पेंडोरा बॉक्स खुल गया अब तो।
तो चलो let आशुतोष us see और सर क्या कोई होगा। आगे? सर आगे चले सर आप। आशुतोष, यस संचित। तो हाँ, जैकी की सर क्वेरी है कि 194M के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं क्या आप? 194M जिन सिचुएशंस में 194M एप्लीकेबल। 194M किस किस सिचुएशन में अप्लाई करता है? यस सर। 194M का अपन ने सेक्शन देखा था, स्पेसिफिक जो सेक्शन की बात की थी अपन ने, ऐसे एसएससी जिसको टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी जिसके ऊपर नहीं आती, पहली चीज टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, फिर भी वो पेमेंट क्या क्या कर रहा है, ठीक है ना, कमीशन दे रहा है, वो वर्क्स करा रहा है, लेबर पेमेंट कर रहा है, ब्रोकरेज दे रहा है, बाय वे ऑफ फीस और प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, अगर ये सारी चीजें दे रहा है वो, और जो कि 50 लाख से ज्यादा की, ऐसी सिचुएशन में उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मैं अपना मकान बनवा रहा हूं, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया मकान बनवाने के लिए, और उस कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया, मैं एक सैलरीड पर्सन भी हो सकता हूं, एक रिटायर्ड पर्सन भी हो सकता हूं, ऐसी सिचुएशन में मेरे पास टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इन दैट सिचुएशन 194M विल अप्लाई, और फिर मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा उसमें। ठीक है संचित? ओके सर। यस सर। और कुछ? और Anyone else? किसी की क्वेरीज है तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं या चैट बॉक्स चेक कर ले एक बार। सकते हैं। संचित अग्रवाल जी की प्रतीक सर ने हैंड होल्ड किया। हाँ सर आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो यस प्रतीक सर आप अनम्यूट कर 194F में आपने बोला कि हमारी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, तो उसमें वी नीड टू ऑब्टेन 10 नंबर अगेन, हमको 10 नंबर ऑब्टेन 194M में मेरे ख्याल से 194M में 10 की शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी जैसे चला जाता है जैसे अपने दूसरे प्रोविजंस होते हैं ना, 26 क्यों भी फाइल कर रहे हैं वैसे ये भी फाइल होगा क्या? ये भी फाइल हो जाएगा। ओके ठीक है ओके। अखिलेश जैन सर की सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ये बताइए 194N में जो टीडीएस कट रहा है, हाँ, वो उसका बैंक में सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, कहीं 26 ईयर्स में भी नहीं आ रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, तो बैंक में बैंक में रिटर्न गड़बड़ी है कि क्या हुआ है? बैंक में या तो रिटर्न गड़बड़ है, 10 अपडेटेड, तो उसका पैन अपडेटेड नहीं है, किसी और हाँ? पैन में जा रहा होगा टीडीएस उसका, अच्छा ठीक है ना, बैंक उसका से। पैन नंबर जो अकाउंट में डाला हो गलत डाला होगा कोई ना कोई। हाँ, क्योंकि हमारे 2-3 केस में ऐसा हुआ कि 194N में टीडीएस कटा, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है अभी कहीं भी। नहीं, वो तो बैंक का सही है, फॉलो करना पड़ेगा, उसमें पैन नंबर कहीं गलत अपडेटेड है तो किसी और के पैन में जा रहा हो टीडीएस। ओके थैंक यू। अरे सर दर्शन तो करा दो आपके। अरे भाई जैन साहब हमारे दर्शन नहीं कराते, क्या बात है, मतलब बीजेपी की मीटिंग में कैमरा चालू करके बैठते हैं, सीए की मीटिंग में नहीं बैठते हैं, गलत बात है तो। सर वीडियो ऑन कर ले एक बार तो ज्यादा बेटर होगा। अरे इस पेंडेमिक में कम से कम सबकी शक्ल तो दिख जाती इसी बहाने। अरे देख क्यों नहीं रहे हम यार? अब ये तो आप बताओगे। अरे हमने वीडियो चालू कर लिया यार। बीजेपी कार्यालय में तो नहीं बैठे हो आप? अरे नहीं यार। चलो नहीं देख रहा, कौन देख रहा वीडियो? कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, चलो ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। संचित नेक्स्ट प्लीज। संचित एक आध रेज हैंड और भी है क्या? देख रहे हैं संचित। 2 मिनट सर। किसी और को क्वेरी है क्या? चैट बॉक्स पे तो कुछ नहीं है। नहीं सर। टैक्स ऑडिट फॉर्म से रिलेटेड या रिटर्न से रिलेटेड। अनिल सर अगेन जस्ट सर अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। हेलो
हेलो सर नीरज जी, आवाज आ अब रही है? आपकी शक्ल सही दिखना चालू हुई सर। ये दाढ़ी वाड़ी कब से बढ़ गई आपकी? अरे अभी बढ़ गई यार। नीरज जी एक चीज बताइए, सर थोड़ा सा इससे हटके है 270 वाले जो इम्यूनिटी मिलती है पेनाल्टी से। सर आप आउट इसको ऑफ द कोर्स जा रहे हो सर आप। हाँ आउट ऑफ कोर्स, तभी तो आपसे परमिशन ली, तभी आपसे परमिशन ली मैंने। अरे नहीं सर, देखो सर क्या है, बच्चा इतना सा पढ़ के आया, अब आप पूरा एड पूछोगे, गड़बड़ कराओगे सर। नहीं मेरा इसमें सर ये था कि फॉर्म नंबर 68 जो सबमिट करना है उसका कोई कॉलम है कहाँ, वेयर टू सबमिट द फॉर्म। प्रॉब्लम इज डेट कि अभी जितने आए हैं हम कर रहे हैं तो फॉर्म नंबर 68 का पोर्टल पे कोई कॉलम ही नहीं है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, और विद इन ए मंथ उसको जमा करना है। तो जब 30 डेज का टाइम लिमिट है सर उसमें तो। हाँ, तो उसको जमा करने का इसको ये बहुत बड़ा ये क्या मतलब, ये मतलब क्या बताएं, तो प्रॉब्लम वाली बात है। जब आपने कोई कोई विंडो ही नहीं दी मेरे को, अदर फॉर्म्स में ऑप्शन नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा 68 मैंने का भी अंत, अभी तो केस में हमने सबमिट तो नहीं क्या किया, किया कि मेरे को लगा फिजिकली था जमा कर अदर दिया, फॉर्म्स में डाला होगा उन्होंने। तो अदर में भी नहीं आ रहा सर, देखा पूरा जो है ना ऑफलाइन है ना ऑनलाइन है। तो अगर फॉर्म ही नहीं सबमिट होगा तो कैसे, फिर हमने तो फिर क्या किया कि फिजिकली जमा कर दिए। तो इसमें कुछ आगे तो चल सर के क्या मतलब कुछ आइडिया है इसके बारे में किसी भी? ऑनलाइन कुछ नहीं है सर, तो फिजिकल जमा करना ही है, फिटनेस ऑप्शन बचता अभी तो फिलहाल। हाँ वो तो सेफ्टी के हिसाब से कर लिया, पर जुडिक्शन ये तो जमा हो रहा है, ये तो जुडिक्शन असेसिंग ऑफिसर हो रहा है, जबकि मेरा असेसमेंट तो ई असेसमेंट ने किया, तो जो पेनल्टी का राइट भी ई असेसमेंट ऑफिसर को है। तो यहाँ जमा करना मेरा कितना सक्सेसफुल रहेगा, ये भी तो बात की चीज है। तो मिनिमम लिए ने किया कि कुछ नहीं तो भाई मैं तो सर जमा कर दिया, मेरे पास कारण नहीं था, पर किसी को कोई सर आइडिया है कि डिपार्टमेंट का पोर्टल ही अलाउ नहीं कर रहा है, तो असेसी इज हाँ लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस। हाँ, तो ये प्रॉब्लम भी है, मतलब है वो सिस्टम में। अच्छा सिस्टम के अंदर जो ऑर्डर आ सर आपकी आवाज रहे हैं ब्रेक हो रही उसमें है। अगर कुछ गलती है असेसमेंट ऑर्डर के अंदर, हेलो क्लियर, हाँ सर, हाँ सर। हेलो, हाँ, मेरा ये कहना है कि जो ई असेसमेंट के ऑर्डर आ रहे हैं उसमें भी करेक्शन करने के लिए 154 की विंडो नहीं है। सर मैंने एक केस में 154 का एप्लीकेशन लगाया था। कहाँ पे लगाया था आपने? ये असेसमेंट में सर कैसे? मैं तो सब रिप्लाई वाले कॉल ऑनलाइन सर एक 154 एप्लीकेशन लगाया था मैंने मेल पे। सर मेल पे कैसे? जिस उसके मेल से विंडो में जो कॉलम, जो उसका विंडो कॉलम है उसमें कहाँ है, कहीं है ही नहीं, वो तो बंद बंद कर देता सर है। जैसी जैसी उसने ऑर्डर ईमेल से किया। 154 मैंने लगाया था, तो उसका रिप्लाई आया, यू हैव टू फाइल हाँ 154 बिफोर योर जुडिशियल लोकल जुडिशियल ऑफिसर। अच्छा, ये मेरे पास नहीं तो मेल आया उसका। अच्छा ये तो चलो आपने अच्छी चीज बता दी, पर क्या ऐसा कहीं लॉ में उसमें है कि जो कि यहाँ पर ई असेसमेंट वहां कराएं, और क्योंकि मैंने यहाँ जब उसको लगाया तो उसने बोला कि मेरे जुडिक्शन के बाहर है, आपने असेसमेंट आपका दिल्ली से हुआ है तो आप जो दिल्ली फॉर्म मतलब इसको 154 कराए। यहाँ वाले ने मेरे को ऐसा आंसर दिया। अब मैं अब मैं तो बोला सर आप तो ठप्पा लगा के दे दो। मेरे पास उल्टा मैंने ऑनलाइन तो मेल लगाया तो उसने मेरे को लिख के दिया कि आप लोकल जुडिशियल ऑफिसर क्या चाहिए। लोकल वाले बोलते हैं कि भाई मैं तो कुछ किया ही नहीं ऑर्डर, मेरे को क्यों आप गलती बता रहे हो यार। शंकर सर हैव क्वेरी इन चैट बॉक्स। शंकर भी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो यस ऑडिबल। सर, ये 100 कैपिटल गेन के केस में 110% ऑफ द प्रॉपर्टी लेना है, तो सेल प्राइस का लेना है या स्टैम्प वैल्यू का लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का लेना है? 110% आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू और जो सेल कंसिडरेशन जो गाइडलाइन वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें 110% किसका निकाल के देखेंगे, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का, ट्रांजैक्शन वैल्यू का। ठीक भैया, जी भैया, थैंक यू। Mukesh sir, do you have another query, please? You can unmute. अनम्यूट कर दो। Yes, Mukesh sir.
अगर आज का जैसे ये वाला डिसीजन हो गया तो मेरे ख्याल से गुप्ता सर का भी चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन के ऊपर बड़ा अच्छा स्टडी हो गया है। एक बार थोड़ा सा उसे रिक्वेस्ट करो, उसको रिवाइज करवा दें थोड़ा सा। सर का आर्टिकल तो बहुत ही जोरदार है। हाँ नहीं वो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया लिखा सर ने। पूरा पॉइंट था। रिक्वेस्ट करेंगे भाई कमेटी मेंबर से कि सर का टाइम ले लिया जाए और चैरिटेबल पे कुछ हम लोगों को ज्ञान दे दिया जाए। सर वैसे भी नए अवतार में दिख रहे हैं इस समय। और एक ब्रांच कमेटी से रिक्वेस्ट भी किया था कि भाई इसमें एप्रोप्रिएट चेंजेस के लिए एक मेमोरेंडम थोड़ा भेज दिया जाए तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना भाई, 21 का ऑडिट हुआ नहीं, अप टू डेट तक की आप चीज मांगते हो। मधु मैडम यू कैन अनम्यूट। सर एकदम नोट कर लिए हैं और ये हम फॉरवर्ड करते हैं आगे भी। और सर इसी वीक में या इसी मंथ में अपन इसके बारे में एक और मीटिंग रख सकते हैं। मैडम एक रिक्वेस्ट होता है, टीसीएस रिटर्न का लास्ट डेट आ रहा 15 मई का, उसका भी एक मेरे ख्याल से मेमोरेंडम में कवरेज जाना चाहिए कि कुछ डेट एक्सटेंड करें। लॉकडाउन में कैसे आदमी काम करेगा, बड़ा डिफिकल्ट है। सर ठीक बोल रहे हैं आप, बट अभी सीआईआरसी की एक मीटिंग हुई थी जहां उन्होंने ये बोला है कि हम लोग डेट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आई फॉरवर्डेड द मिनट्स आल्सो इन द ग्रुप, जहाँ पे सीआईआरसी चेयरमैन का ये कहना है कि एक्चुअली नेगेटिव वो जा रहा है। हम लोग जब भी ओनली सीए मेंबर्स आर रिक्वेस्टिंग फॉर डेट एक्सटेंशन, और जो बाकी बिजनेसमैन हैं या जैसे जो चेंबर्स हैं वो लोग नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग काफी काम लूज भी कर चुके हैं। और इसलिए उनका कहना था कि डेट एक्सटेंशन अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, हम सीआईआरसी में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो लोग आगे मतलब दे रिक्वेस्ट फॉर द डेट एक्सटेंशन। एज अ ब्रांच अब उन लोग ने मना किया है हम लोग को डेट एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए। So that's correct also. CIRC को एक बार अपन कन्वे करें कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी एक्चुअली प्रॉब्लम अलग अलग स्टेट में अलग अलग ड्यूरेशन में लॉकडाउन चल रहा है। ऑल इंडिया लेवल पे कोई पॉलिसी नहीं है तो ये कैसे होगा? आप कह तो सही रहे हैं, हम लोग सीआईआरसी आई गेस हम लोग बात कर सकते हैं, बिल्कुल सीआईआरसी हम लोग भेज सकते हैं मेमोरेंडम। संचित यस सर। सर आई थिंक अभी 40-45 मिनट्स का सेशन बचा है तो इफ यू कैन डेलिब्रेट ऑन हाउ टू, क्योंकि बहुत सारे यंग मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं, अभी ओवर 60+ यंग मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो अगर इफ यू कैन डेलिब्रेट कि हाउ टू परस्यू या हाउ टू go ahead in practice in initial days, in initial 3-4 years after removal of GST audit as well and the increase in limit of tax audit, तो इस सिनेरियो में कैसे प्रैक्टिस स्पेशली एक छोटी सी डिस्कस करता हूँ जो मेरे मन में थी, तुमने बोल दिया रिमूवल ऑफ जीएसटी ऑडिट। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत ज्यादा हंगामा इस बात को लेके, रिमूवल ऑफ जीएसटी ऑडिट। मेरा पर्सनल फीलिंग है, मेरी पर्सनल है, बिल्कुल बोल रहा हूँ फीलिंग। मेरे हिसाब से जीएसटी ऑडिट का जो 9 और 9C है, फिर 9 और 9C आई डोंट फील सो कि एनी एसएससी हिमसेल्फ कैन डू इट। सो इसको मुझे लगता है इसको अदरवाइज लेना चाहिए। ये रिमूवल ऑफ जीएसटी ऑडिट नहीं है, आपको जीएसटी ऑडिट आगे भी होगा। जो भी क्लाइंट काम कराना चाहता है, जिसको भी आगे अगर कुछ बचत होनी है, कुछ उसको समझ में आएगा, हो सकता है शायद 1 साल ना आए, 2 साल समझ में आएगा उसको कि जब वो जीएसटी ऑडिट कराता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, 9C प्रॉपरली एक प्रोफेशनल से कराता है, तो उसको कितना एडवांटेज मिलता है उसका। अगर आज मान लीजिए कोई वर्ग जा रहा है मे बी, तो एक तो उसके लिए खुद के लिए भरना आसान नहीं है। अगर वो खुद भरेगा तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करेगा और उस मिस्टेक्स का खामियाजा उसको आगे जाके असेसमेंट में भुगतना पड़ेगा। तो उल्टा मैं तो कह रहा हूँ उसमें बेनिफिट ये होगा कि आप काम पूरा वही करोगे जो पहले कर रहे थे, बट रिस्क जीरो हो जाएगी क्योंकि आपको साइन नहीं करना है। 9C आगे भी आप ही को बनानी। मुझे नहीं लगता
कि अगर आप आज की डेट में 50 एसएससी का काम कर रहे हैं तो 50 के 49 हो सकते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। नीरज, कोई इसमें ऐसा एक ही नहीं मेरे को कर सकता। कंस्ट्रेंट लग रहा है, जी जहाँ पे आपके एडवोकेट लॉ फॉर्म 9 भर रहा था उसका 9C वही कर लेंगे, उसका 9C आपके Correct. पास हट जाएगा, ये बस। भैया कैन डू इट, भैया दे कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, दे आर आल्सो प्रोफेशनल, दे कैन डू इट, नो इश्यूज ऑन दैट। बट सिंपल सी बात ये है कि कितने परसेंटेज वर्किंग आज की डेट में जो जीएसटी में अच्छा काम है, मेरे हिसाब से उस अच्छे काम पे मेजोरिटी होल